Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Executive in book 1, that is Constitution at Work. And in this chapter we were discussing about the President. And in the previous class we have discussed about Article 74 Clause 1 which states that there shall be a Council of Ministers to aid and advise the President, and the President is supposed to act in accordance with such advice. As I told you, in our original constitution there was ambiguity regarding the President is bound to accept the advice of the Council of Ministers or he is not bound to accept the advice of the Council of Ministers. It was not clear in the constitution, so an amendment was made in this article, and now it is said that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, but the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. So it is the power of the President that it can send back the advice to the Council of Ministers for reconsideration, but after reconsideration, whatever advice is given by the Council of Ministers will have to be accepted by the President. So our President is completely a formal head who does not enjoy any real power. His powers are only ornamental or ceremonial. He is there only to sign, put his sign and stamp, nothing else. But it's not like that. ऐसा लगता है हमें कि बस प्रेसिडेंट का यही काम है कि वो whatever decisions are taken by the Council of Ministers, he is there to put his signature on that decision. He has no real role to play. But actually what we find that first of all, it is the right of the President to be informed of all important matters and deliberation of the Council of Ministers. Whatever discussions are taking place, whatever they are discussing, उस बारे में प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकती है कि आपने क्या डिस्कस किया, आज की मीटिंग जो हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसमें किन इश्यूज पे डिस्कशन हुआ, क्या डिस्कशन हुआ. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट. हम नहीं कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज ओनली देयर टू पुट हिज सिग्नेचर. ही हैज़ द राइट टू बी informed about the discussions and deliberation of Council of Ministers, and it is the duty of the Prime Minister to furnish all the information that the President may call for. If the President wants any kind of information from the Prime Minister cannot refuse him. It is the duty of the Prime Minister to give him all the information. Whatever information he is requiring, he is asking for, every information must be provided by the Prime Minister. It is his duty. Okay, and it also happens that many times the President writes to the Prime Minister and expresses his views on matters of national importance. Whatever, अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का है तो उस पर वो अपने व्यूज लिख करके प्राइम मिनिस्टर को अपने व्यू से अवेयर कराते हैं. सो दैट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो रहा है कि द व्यूज ऑफ प्रेसिडेंट इज इम्पॉर्टेंट. वी कांट से दैट ही हैज़ नो रोल टू प्ले. मोर ओवर, ये तो हमने देख लिया. इसके अलावे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम कहेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट का पावर है, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, so today we will discuss this discretionary power of the President. Now the question, what do we mean by discretionary power? As I told you, I introduced this topic to you in the previous class. Discretionary means those powers which are used by the President without any aid and advice from the Council of Ministers. These powers are used by the President on his own reason. He follows his own reason.
जब वो अपने रीजन को फॉलो करते हुए विदाउट फॉलोइंग द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर and council of minister, he is only following his own reason, then that is called discretionary power. In our constitution, though such power is not given to the president. president को ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं दिया गया है कि ये powers जो हैं ये उनके discretionary power है. But what happened that there are some situations, okay, there are some situations in which the president uses his discretionary power. ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट को अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करने का मौका मिलता है. ओके ये नहीं है कि उसको इस मामले में डिस्क्रिशन दिया गया कि वो अपने से काम कर सकता है. इट इज सिचुएशन. ठीक है. तो द फर्स्ट सिचुएशन इज रिगार्डिंग दैट आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ओनली कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड. The president shall act in accordance with the aid and advice of the council of ministers. Okay, and now we have seen that the president has the right to send back the advice given by the council of ministers, है ना, and ask the council of ministers to reconsider the decision. ठीक है. तो when the president is sending back the advice of the council of ministers, when the president is not accepting the advice of the president, at that time he is using his discretionary power, because there is no council of minister to advise him to send it back, है ना. जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को वापस भेज रहा है तो उस समय वो अपने डिस्क्रिशन को यूज कर रहा है, बिकॉज उस समय कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पे नहीं है उसको एडवाइस देने के लिए कि आप इसको रिकंसिडर के लिए भेजिए. गेटिंग इट. वो कैसे क्यों रिकंसिडर के लिए भेज रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ हो सकता है, देयर मे बी सम लीगल लूप होल, कुछ लीगल कमी हो सकती है, या फिर वो जो एडवाइस है दैट कैन बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसके अगेंस्ट वो हो सकता है, या कुछ भी ऐसा मैटर हो सकता है जो कि प्रेसिडेंट को लगता है कि इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, एंड इट इज टोटली हिज विजडम. वो अपने विजडम के अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है. नो वन इज देयर टू गिव हिम एडवाइस, है ना. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर रहा है कि जब व्हेन ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ही इज सेंडिंग बैक द एडवाइस to the council of minister. This is one of the situations, actually 3 situations are there. So this is one of the 3 situations in which the president uses his discretionary power. Okay. Now the next thing, the discretionary power of the council, this discretionary power, sometimes it is said it is of no use. Why? Because president will send back the advice of the council of minister, है ना, and then the council of minister will reconsider the matter, and if the council of minister resend the advice, same advice without any change, the council of minister resends the advice to the prime minister, to the president, then what happen? The president is bound to accept that advice, है ना. यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार उसको रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकता है. जब रिकंसिडर कर लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने और फिर से उसको वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट. देन द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर and rejecting it and resending it for reconsideration. जब दूसरी बार आएगा तब तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें उन्होंने कुछ चेंज किया हो चाहे नहीं चेंज किया हो. जैसा उन्होंने फर्स्ट टाइम में भेजा था सेम वही अगर वो सेकेंड टाइम भी भेजते हैं तो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट. सो व्हाट इज द यूटिलिटी? आखिर इस तरह का ये करने से प्रेसिडेंट को मिला क्या? उसने तो रिसेंड के लिए भेज दिया, लेकिन रिसेंड कर दिया, उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, लेकिन रिकंसिडरेशन करके भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई चेंज नहीं लाया. इसकी स्टिल इट इज यूजफुल, स्टिल इट हैज वैल्यू. एंड व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज
कि द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड वेरी हाई. It holds a very respectable position in the eyes of the people, and if the president is sending back the advice to the council of ministers, it means that something is wrong. Okay, something is wrong. People come to know about it, है ना. लोगों को इसकी जानकारी मिल जाती है, बिकॉज नाउ इट इज वी हैव सच एन एक्टिव मीडिया, जो कि ब्रेकिंग न्यूज हर समय हमारे सामने ब्रेकिंग न्यूज आते रहते हैं. तो क्या है, अगर प्रेसिडेंट इस तरह का रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है तो ये तुरंत लोगों के सामने आ जाएगा, एंड इट विल फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन कि कुछ गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग समथिंग जो कि गलत हो रहा है. तो एक तरह का एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होगा जो कि गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में फॉर द रूलिंग पार्टी इट मे बी डेंजरस फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन. तो कोई भी रूलिंग पार्टी इस तरह का नहीं करना चाहेगी, है ना. तो दिस इज द वेट. ये इम्पोर्टेंस है कि अगर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे कंट्री पे पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन पे पड़ेगा, और इसका जो जिसको हम कह सकते हैं खामियाजा जो है वो हमारे रूलिंग पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में इनकर करना पड़ सकता है, सहना पड़ सकता है ना. So this is the first situation. Now we see the second situation. The first situation is regarding advice of the Council of Ministers. Now the second situation. The second situation, we know that any bill which is passed from both the houses of the parliament cannot become an act without the signature of the president. This is not the case with the money bill, because money bill को टेबल करने के पहले ही prior approval ले लिया जाता है प्रेसिडेंट का. तो the president cannot use this power in case of money bill. अगर money bill है, ठीक है, मनी बिल अगर है तो मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन लोकसभा ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. एज द प्रेसिडेंट हैज गिवन द प्रायर अप्रूवल, सो इट इज नॉट द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो उसको उस पर साइन न करे या किसी तरह का रिकंसिडरेशन के लिए भेजे. वो नहीं होता है, क्योंकि आपने पहले ही अप्रूवल दे चुका है ना. जब हम पहले ही कह चुके हैं कि यस आई एम गिविंग माई अप्रूवल फॉर दिस बिल, तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ द हाउसेज द प्रेसिडेंट कैन नॉट से कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे. ठीक है, ये मनी बिल के रिगार्डिंग है. ओके, अब मनी बिल को हम छोड़ देते हैं. वी आर नॉट कंसिडरिंग मनी बिल, वी आर ओनली कंसिडरिंग ऑर्डिनरी बिल, नॉन मनी बिल. ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसके लिए क्या प्रोसेस है. ऑर्डिनरी बिल कैन बी टेबल्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, या तो लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी, कहीं भी उसको टेबल किया जा सकता है. और एक हाउस से पास होके वो दूसरे हाउस जाता है, फिर दूसरे हाउस से पास होके वो जब दोनों हाउस से पास हो जाती है तो फिर वो इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल. अब प्रेसिडेंट ने सपोज करो प्रेसिडेंट जो है ही इज नॉट रेडी टू साइन द बिल. उसको लग रहा है कि इसमें कुछ समथिंग सम लैकुना इज देयर, सम लूप होल, लीगल लूप होल है, या फिर वही नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट है. तो प्रेसिडेंट किसी भी ग्राउंड पे, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एनी ग्राउंड, है ना, ही कैन रिजेक्ट. ही सेड नॉट रिजेक्ट कंप्लीटली, वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा. किस हाउस को, जिस हाउस से वो आया था प्रेसिडेंट के पास. इफ इट कम्स फ्रॉम द राज्यसभा तो वो राज्यसभा के पास वापस जाएगी. इफ इट कम्स फ्रॉम द लोकसभा देन इट गोज बैक टू लोकसभा. तो जिस किसी भी हाउस से प्रेसिडेंट के पास आया था, प्रेसिडेंट विल सेंड इट बैक टू द सेम हाउस विथ हिज रिकंसिडरेशन. वो कहेगा कि इस ये जो बिल है इस पे रिकंसिडरेशन की नीड है, सो आप इसको रिकंसिडर कीजिए. तो इसको हम कह सकते हैं इट इज लिमिटेड वीटो, है ना. जो सेकेंड सिचुएशन हम देख रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ द बिल, जिसमें कि प्रेसिडेंट को लिमिटेड वीटो है, जिसमें प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए सेंड कर सकता है. बट
इसमें भी फिर वही बात हो जाती है कि इफ द पार्लियामेंट पासेस द सेम बिल अगेन, सेम बिल विदाउट एनी चेंजेस, रिकंसिडर के लिए भेजा प्रेसिडेंट ने और रिकंसिडर किया हाउस ने, बट उसने कोई भी उसमें चेंज नहीं लाया, वो जैसा था वैसा ही रहा, और फिर से उसको सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट। अगर फिर से वो भेज दे रहा है प्रेसिडेंट के पास, तो नाउ द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन ऑन दिस पेज, है ना। अब प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको इस पे साइन करना होगा। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट लिमिटेड वीटो। वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब होता है पावर टू से नो। जब हमको ना कहने का अधिकार होता है तो हम उसको वीटो कहते हैं, वीटो पावर, है ना। वीटो इज पावर टू से नो। सो ये हमारे प्रेसिडेंट को जो वीटो पावर है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज ही कैन ओनली सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, एंड आफ्टर रिकंसिडरेशन जो भी आएगा वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दिस इज वाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड वीटो। बट apart from this limited veto, the president also has a different kind of veto which is called pocket veto. Okay. So now what is this pocket veto? The pocket veto is not written in our constitution. Never the term has been used or anything like that is not there in the constitution, but it has evolved. क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम्बिग्यूटी है, जिसका फायदा प्रेसिडेंट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस एम्बिग्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऐसा हुआ भी है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑल्सो। तो व्हाट इज दिस पॉकेट वीटो? सपोज जो बिल है वो दोनों हाउस से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है सिग्नेचर के लिए, बट प्रेसिडेंट को उसमें कुछ ही इज फाइंडिंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग लीगली और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ही कंसिडर्स कि कुछ गलत है उसमें, ही इज नॉट रेडी टू पुट हिज सिग्नेचर ऑन दैट बिल। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो मेंशन अबाउट द टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। जैसे एक सिचुएशन हमने देखा कि प्रेसिडेंट कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। दूसरा सिचुएशन हम क्या देख रहे हैं कि टाइम लिमिट कुछ भी नहीं दिया गया है प्रेसिडेंट को कि आप दोनों हाउस से में साइन करके जब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा तो द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन इट विद इन 2 months or 3 months, anything like that, nothing is there. President is bound to sign it, or he can send it back for reconsideration within 2 months, 3 months. No, nothing is given. कोई टाइम लिमिट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कि जब वो दोनों हाउस से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जा रहा है तो प्रेसिडेंट उसको कितने दिनों के अंदर उसको साइन करके वापस भेजना है या फिर रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को वापस भेजना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है कि द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विथ हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट, बिकॉज टाइम लिमिट इज नॉट देयर। तो वो उस बिल के बारे में कुछ बात ही नहीं करेगा, ना तो हम रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे ना हम साइन करेंगे। हम उस बिल को हमने पॉकेट में रख लिया अपने, और आई फॉरगॉट अबाउट इट कि कोई बिल मेरे पास आया भी है साइन के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो, है ना। वो उसके पॉकेट में पड़ी रहेगी, वो टेबल पे रख के उस पर साइन नहीं करेंगे, ना उसको रिकंसिडर के लिए भेजेंगे। इट विल रिमेन इन हिज पॉकेट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। एंड वंस our president has used this pocket veto. The president was Gyani Jail Singh in the year 1986. 1986 में एक बिल जो जबकि उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने एक बिल लाया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ओके, सो इस बिल में क्या था कि दिस बिल वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, पीपल लोगों को जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया उसके वो अगेंस्ट था। इसकी बिल की काफी क्रिटिसिज्म हुई थी। ठीक है, स्टिल दोनों हाउस से वो पास हो गया, और बिकॉज मेजॉरिटी होने के कारण, रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी होती है, अगर दोनों हाउस में, लोकसभा में तो मेजॉरिटी होगी तभी वो रूलिंग पार्टी बना है, और अगर लोकसभा में भी उसकी मेजॉरिटी होती है तो इट इज वेरी इजी टू पास द बिल फ्रॉम बोथ द हाउसेस। तो क्रिटिसिज्म के बावजूद जो बिल था वो दोनों हाउस से पास हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट रीचेस टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर। प्रेसिडेंट वाज ज्ञानी जैल सिंह, एंड ही व्हाट ही डिड, he simply
did not take any decision on this bill. Neither he sent back for reconsideration, neither he put his signature on that bill. He just forgot about the bill. He used this pocket veto. एंड देन व्हाट हैपन कि जब उनका टर्म खत्म हो जाता है तो फिर नए हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं वेंकट रमन. एंड वेंकट रमन जो है जो भी पॉकेट वीटो इस तरह से यूज किया जाएगा, उनके सामने पेंडिंग बिल है, वो एक जब नया कोई प्रेसिडेंट आएगा तो फिर वो उसके सामने जाएगी वो बिल कि जो आपके पहले के प्रेसिडेंट उनके पास ये बिल आया था, उन्होंने इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया था. तो नाउ इट वॉज डिसाइडेड बाय द वेंकट रमन टू सेंड इट बैक टू द बिल टू द हाउस. ठीक है, उन्होंने हाउस को पास वापस भेजा रिकंसिडर करने के लिए. वेंकट रमन ने, जब ज्ञानी जैल सिंह के बाद वेंकट रमन आए, उन्होंने उस हाउस को वापस भेज दिया कि आप इस पर रिकंसिडर करिए. और बाय दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी, वो गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी बिकॉज 1989 में इलेक्शन हो गए थे और 89 के इलेक्शन में कांग्रेस जो थी वो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी, है ना. यू नो कि 1989 से हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में एरा ऑफ कोलिशन स्टार्ट होता है ना. तो उस समय 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिल पाई और जो गवर्नमेंट बनी, वो नई गवर्नमेंट जो बनी, उसके मैनिफेस्टो में या उसके प्रोग्राम में ये बिल था ही नहीं. तो वो इस बिल को क्यों पास करेगी, नहीं करेगी. तो इस तरह से प्रेसिडेंट बदल जाते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है और जो बिल है इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल वो पास नहीं हो पाता है, जो कि ऐसा कहा गया था कि इट वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि pocket veto can be used by the president. So this is also his discretionary power when he is deciding that he does not need to send it back to the house for reconsideration, but he wants simply to put it in his pocket. So this is completely his decision. He is taking this decision using his reason and wisdom. तो इसको भी हम एक सिचुएशन मानते हैं जिसमें कि द प्रेसिडेंट कैन यूज हिज डिस्क्रिशनरी पावर. एंड नाउ कम्स द थर्ड सिचुएशन. द थर्ड सिचुएशन इज regarding the appointment of the prime minister. As we all know, we have a parliamentary form of government, है ना. And in this parliamentary form of government, what happens that elections are held for the lower house of the parliament. That is in our country it is called Lok Sabha, है ना. लोक सभा के लिए इलेक्शंस होते हैं एंड इन दिस इलेक्शन विच एवर पार्टी विन्स द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स, दैट पार्टी is considered as a ruling party. That party is invited by the president for formation of the government, particularly the leader of that party, है ना. जो भी जिस पार्टी को भी इस इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिलते हैं, उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाते हैं एंड दैट लीडर इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर, है ना. दिस इज एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज आई मेनी टाइम्स आई एक्सपीरियंस दैट स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग कि ये जो सिस्टम है वो क्या है. ये बहुत सिंपल सिस्टम है. लोकसभा हमारी है जो कि लोअर हाउस है, जिसमें कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. लोकसभा के लिए इलेक्शन होती है. इलेक्शन में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, है ना. और ये जो इलेक्शंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या बनते हैं, लोकसभा के इलेक्शन से वो बनते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना. तो वो सीधे जाते हैं लोकसभा के मेंबर बनते हैं. जब MP का मतलब यहाँ पर लोकसभा है, क्योंकि लोकसभा के ही जो मेंबर होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, है ना. तो लोकसभा के मेंबर चुन लिए जाते हैं. फिर क्या होता है कि अब लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं उसमें मेजॉरिटी जिसको मिली होती है, जिस पार्टी को, वो पार्टी जो होती है अपना एक लीडर चुनती है. मेजॉरिटी वाली जो पार्टी होती है वो अपना एक लीडर चुनती है और उसी लीडर को जो प्रेसिडेंट है वो बुलाते हैं किस लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. ठीक है. तो वो जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, ही इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर. तो इसमें कोई प्रॉब्लम तब तक नहीं आती है जब तक कि सिंगल पार्टी इज एबल टू विन द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा.
ठीक है, जब तक एक सिंगल पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिल पाती है। ठीक है, सपोज करो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमारे कंट्री में आए आफ्टर, स्पेशली आफ्टर 1989। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ना कि 1989 के पहले तक के जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस को ही मेजॉरिटी मिलती रही, लेकिन 1989 का जो पीरियड का जो इलेक्शन है वो एक स्टार्टिंग होती है हमारी कंट्री में कोalition गवर्नमेंट की। कोalition क्या होता है? जब एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो एक से ज्यादा पार्टी आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट मोर देन वन पार्टीज यूनाइट टुगेदर। ठीक है, कुछ हमारे एमपीज हैं, कुछ आपके एमपीज हैं, हम दोनों के एमपीज अगर मिल जाएंगे तो हम फिर मेजॉरिटी वाली जो वो है मार्क है उसको क्रॉस कर जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस तरह की गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें सिचुएशन काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, कि कई सारे जो लीडर्स हैं वो क्लेम करने लगते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है। किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा के इलेक्शन में। अब आफ्टर द इलेक्शन व्हाट इज हैपनिंग कि देयर आर मोर देन वन लीडर who is claiming that he or she has the support of the majority of the house। ठीक है, ये क्लेम करना वो स्टार्ट कर देते हैं कि उनके पास हाउस की मेजॉरिटी की सपोर्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी फाइंड कि प्रेसिडेंट के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि वो किस पे बिलीव करे कि उसके पास मेजॉरिटी हाउस की मेजॉरिटी का सपोर्ट है, किसके पास उसके पास हाउस की मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं है। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द प्रेसिडेंट यूजेस हिज डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी पावर से ही ये सोचता है, अपने विजडम से, अपने रीजन से, कि किसको इस बात की ज्यादा मतलब लग रहा है प्रोबेबिलिटी कि इस लीडर को मेजॉरिटी का सपोर्ट है। तो फिर वो उसको बुलाते हैं, किस लिए? अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। फिर उसको एक तो ये डिसाइड करना कि किसको बुलाया जाए इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसमें मोस्टली क्या होता है कि लार्जेस्ट पार्टी जो होती है, लार्जेस्ट पार्टी, नॉट द मेजॉरिटी पार्टी, क्योंकि मेजॉरिटी तो किसी को मिली नहीं है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उनको बुला लिया जाता है। मोस्टली प्रेसिडेंट यही करते हैं, लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन ये इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज कई सारे लोग जब क्लेम करने लगते हैं तो ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है, और उस समय देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ही इज टेकिंग डिसीजंस ऑन हिज ओन, है ना। तो इस तरह में वो क्या करते हैं कि मोस्टली जो भी उनके विजडम के अनुसार, उनके रीजन के अनुसार जिसको लगता है कि वो मेजॉरिटी प्रूफ कर लेगा उसको वो बुलाते हैं। देन दूसरी चीज क्या होती है, उनको एक टाइम लिमिट भी देना पड़ता है। विद इन 4 days, विद इन 2 days, विद इन 10 days आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी है। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्या है? अगर प्रेसिडेंट ने ज्यादा टाइम दे दिया, 10 days का टाइम दे दिया, 15 days का टाइम दे दिया आपको मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए, तो इन दैट सिचुएशन बहुत कुछ हो सकता है। आजकल आप यू मस्ट बी वॉचिंग कि किस तरह से एमपीज, और एमपीज में तो अभी नहीं हुआ है, एमएलएज का हमने कई सारे स्टेट्स में ये प्रॉब्लम्स देखा, कर्नाटका में, राजस्थान में, जबकि एमएलएज की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल एमएलए के आने से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, तो ये मामला मतलब करोड़ों का मामला चलता है। तो इसलिए ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है उनको ये अपने विजडम से डिसाइड करना है कि कितना टाइम उन्हें देना है किसी भी लीडर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। ठीक है, और इसमें एक ये भी है कि आज के समय में एक नया ट्रेंड भी डेवलप हो गया है प्रेसिडेंट की तरफ से, कि वो क्या करते हैं कि जो भी लीडर ऑफ द पार्टी है, इसमें लोकसभा में जो भी लीडर ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास वो है, सपोर्ट है, तो उनको क्या कहा जाता है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करिए जिससे कि पता चले कि हाँ आपको इतने लोगों का सपोर्ट है। सिग्नेचर करा के उनसे लिखवा करके आप ये हमको वो लिस्ट हमारे सामने लाइए
जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कितने लोगों का सपोर्ट है। तो इस तरह के जो सिचुएशन है इसमें भी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो टोटली अपने डिस्क्रिप्शन को यूज करते हैं। और ये सिचुएशन बहुत ही वर्स हो गई थी हमारे कंट्री में फ्रॉम 1989 टू 1998। इस बीच में 4 टाइम्स इलेक्शन हुए थे, ठीक है। और किसी भी इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी और अलायंस का भी बनना बड़ा मुश्किल होता था। अलायंस क्या होता है, जब 2 से ज्यादा पार्टियां साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के पहले ही वो साथ हो जाती है, बिकॉज दे आर नोइंग कि उनको अकेले मेजोरिटी मिलने वाली नहीं है, तो वो पहले ही अलायंस कर लेते हैं दूसरी पार्टीज के साथ, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास।